اللہ وبرکاتہ حامدًا مصلیًا و تسلیمًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور تھکاوٹ اور اسی طریقے سے جو اکتاہٹ کا عالم ہوتا ہے وہ آپ کے چہروں سے بالکل نمایاں ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا۔ توحید دعوت سینٹر کا یہ پروگرام، جس کا کلیدی عنوان جو تھا، کلیدی ٹاپک وہ یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام جیسے کہ پہلے خطیب حافظ محمد عتیق صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر مختلف باتیں بتائی کہ اللہ رب العالمین عید الاضحیٰ کے ذریعے وقت کی اہمیت، اسی طریقے سے توحید کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس توحید کی اہمیت کو بتایا۔ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر نچھاور کرنا ہو، اسے بھی نچھاور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد بڑے بھائی حافظ عبد المتین صاحب بھی آئے، انہوں نے خاص طور سے جو ان کا موضوع مرکوز رہا اولاد کی محبت، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہترین بے مثال بے نظیر واقعے سے انہوں نے اس کا بہترین انداز سے خلاصہ تجزیہ اور بہترین طریقے سے بتلایا کہ کس طریقے سے محبت اور اولاد جو انسان کی زندگی کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے، لیکن اسوہ ابراہیمی ہی تو تھا کہ اسوہ ابراہیمی نے اس پہلو کو بھی ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ چھوڑ دیا کہ اولاد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی، ہماری دنیا خراب ہو جائے، بلکہ اولاد کی وجہ سے ہمارا مثالی کردار یہ ہونا چاہیے کہ اولاد بھی ہمارے لیے باعث جنت ہو اور ہماری زندگی بھی دوسروں کے لیے جنت اور اس کے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے شاید اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسوہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار جو ہے، اس سے کون پہلو تہی کر سکتا ہے؟ اس سے پہلو تہی صرف اور صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جو بیوقوف ہوگا، جو بیوقوف ہوگا وہی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا سے لے کر جوانی، اسی طریقے سے مرنے تک ان کی پوری زندگی ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہر ایک کے لیے بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، لہذا اسی لیے قرآن حکیم کے اندر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں جو ہیں، اور اسی طریقے سے میری قربانی جو ہے، میرا جینا، میرا مرنا، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر دکھایا۔ تو عید الاضحیٰ کا جب بھی موقع آتا ہے، ایک ہفتہ پہلے عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس خطبے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، جو پہلو تھا بے نظیر، جو ان کے واقعات ہیں، ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس ابراہیم کی سنت کو ادا کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ سنت مؤکدہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وجد سعۃ ان یضحی، کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یحضر مصلانا، تو وہ چاہیے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے اندر تشریف نہ لائے۔ ایسا شخص، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی انداز میں کہا کہ ایسے شخص کو زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف آئے۔ ساتھیوں،
इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में इसके बारे में उभारा है कुर्बानी करने के ऊपर। एक दूसरी हदीस आती है, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्li अहले बैतिन फी कुल्li आमिन अदहिया, कि ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर हर साल हर शख्स के ऊपर एक कुर्बानी वाजिब है, एक कुर्बानी की जाए। मोहतरम साफ़ीन इकराम, इसी तरीके से कुर्बानी की फजीलत के बारे में बहुत सारी हदीसें उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, किताबों के अंदर बयान की जाती है। मौजू हदीसें, ज़ईफ हदीसों के जरिए ईद उल अजहा के फजाइल को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जबरदस्ती हमें करने की जरूरत क्या है? जितना नबी ने फरमा दिया है, जितना आइम्मा ने फरमा दिया है, हदीसों में मज़कूर है, कुरान में तज़किरा आ गया, उतना ही काफी है। ला तुतरूनी कमा तुरतिन नसारा, ईसाइयों की तरह आप गुलू ना कीजिए, क्योंकि कभी बताया जाता है कि हर बाल के कुर्बानी के हर बाल के बदले सवाब है, जबकि ऐसे हदीसों का कोई वजूद नहीं है। इब्न अल अरबी फरमाते हैं, जामे तिर्मिजी की शरह में फरमाते हैं, जो आरिज़तुल अहवज़ी के नाम से किताब है, उसके अंदर फरमाते हैं कि लैसा फी फज़्ल अज़हियति हदीसुन सहीहुन वक़द वरन्नासु अजाइबुन मिनहा क़ौलुहु इन्ना मतायाकुम इलल जन्ना। इब्न अरबी कहते हैं कि कुर्बानी के बारे में बहुत सी फजीलत के बारे में बहुत सी हदीसों को बयान फरमाया जाता है। वक़द रवन्नासु फीहा अजाइबुन, हालांकि लोगों ने इसके अंदर अजीबो गरीब हदीसों को की रिवायत किया है, लेकिन कोई भी लम तसिह, लेकिन कोई भी सही उसके अंदर नहीं है। और उन्हीं में से कहा है जो हम भी बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से, इन्नहा मतायाकुम इलल जन्ना, कि ये कुर्बानी के जो जानवर होंगे वो जन्नत के अंदर तुम्हारी सवारियां होंगे। लेकिन ऐसे हदीसों का कोई सबूत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब मरफू हदीसों को के अंदर टटोला जाता है तो इनका पता ही नहीं चलता है। साथियों, तो कुर्बानी की फजीलत और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पूरी जिंदगी है वो हमारे लिए उसवा नमूना है। ये फर्ज है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज अता, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाजें अदा कीजिए, इसी तरीके से उसके लिए कुर्बानी अदा कीजिए। कुर्बानी अदा करना हर मुसलमान के अंदर के ऊपर वाजिब और जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो ये अय्याम है, ये अय्याम जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफजलु अय्यामी दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के सबसे बेहतरीन जो दिन है वो ये 10 दिन है, अय्याम ज़िलहिज्जा के सबसे बेहतरीन दिनों के अंदर इनका शुमार होता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जरिए एक सूरत की शुरुआत की, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ वल वत्र, कसम है फज्र की और उन 10 रातों की। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। जबकि दूसरे, अगर आप रमजानुल मुबारक के अंदर देखेंगे तो रमजानुल मुबारक के अंदर पता चलता है कि उलमा बताते हैं कि रमजान का जो आखिरी अशरा होता है, उन आखिरी अशरा की बहुत ज्यादा फजीलत है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन अय्याम है। और जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि ये 10 दिन अय्याम है। हाफिज इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो भी 10 दिन सबसे बेहतरीन दिन है और ये भी सबसे बेहतरीन दिन है। लेकिन अगर देखा जाए, गौर फिक्र किया जाए, एक दानिशमंद, एक अक्लमंद शख्स अगर गौर फिक्र करेगा तो उसे पता चलेगा कि जो रमजान के आखिरी अशरे के 10 दिन है उनकी 10 रातों की ज्यादा फजीलत है। उन 10 रातों के अंदर आपको लैलतुल कद्र मिलता है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उम्महातुल मोमिनीन सहाबा को ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर तलकीन किया करते थे कि इबादतें की जाएं, तरावी की नमाजें होती हैं उन रातों के अंदर। इस वजह से वो 10 रातें सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन 10 रातें हैं। और इस अय्याम ज़ुल्हिज्जा के जो 10 दिन हैं, इसके अंदर यौम अरफा के दिन पाया जाता है, इसके अंदर कुर्बानी के दिन होते हैं,
इसी तरीके से इसके अंदर सौम भी रखा जाता है यौम अरफा के दिन, जिसके बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया का सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन लोगों को जहन्नम से आजादी देता है वो यौम अरफा के दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा इंसानों को इस दिन के अंदर आजादी जहन्नम से देता है। साथियों, तो इसी तरीके से ईद कुर्बान की यही सबसे ज्यादा जो फजीलत जो वारिद हुई है, जो इसका पैगाम हो सकता है, ये पैगाम यही है कि हमारा जीना, हमारा मरना, और इसी तरीके से जो कुर्बानी नाम है कि हम अब अपने गुरूर, अपनी अना को कुर्बान कर दें। कुर्बानी नाम है कि हम अपनी दुश्मनियों को अल्लाह के खातिर कुर्बान कर दें। कुर्बानी नाम है कि हम जो हर तरह के इख्तिलाफात को छोड़कर भाई भाई हो जाएं, अपने भाई को गले लगा लें, अपने भाई से जो इख्तिलाफात हैं उन इख्तिलाफात को खत्म कर दें। साथियों, अगर हमारी कुर्बानी और इसी तरीके से हमारी इबादतें, जैसे कि यूसुफ साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी के अंदर आज दिखावा ज्यादा हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया है। जो उसका तकवा था कि कि हालांकि बात यह थी कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल अल्लाह तुम्हारा ना तो तुम्हारे खून पहुंचता है, ना तो गोश्त पहुंचता है। अगर पहुंचता भी है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारा डर को पहुंचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों की कैफियत की वजह से तुम्हारे अमाल, तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाता है। तुम्हारे ऐसा नहीं कि पड़ोसी की वजह से, पड़ोसी इंसानों की हया और शर्म की बुनियाद पर हम कुर्बानी कर रहे हैं। पड़ोसियों के हरमो शहर हमारे पास नहीं है और हम वो कभी कभार होता है कि वसाअत भी नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं, तमाम तरह के परेशानियां उठाकर, लेकिन भाई रिश्तेदार क्या कहेंगे और इसी तरह से गांव वाले क्या कहेंगे, और लेकिन कभी कभार वसाअत भी होती है, बढ़ चढ़कर दिखावे के मारे हमको कुर्बानी करते हैं। अगर देखा जाए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल काबिल, वइज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नका, कि काबिल हाबिल ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया, काबिल की नहीं कबूल फरमाया। तक़वे की ही बुनियाद थी। कह बैठा भाई मैं आपको कत्ल कर दूंगा, कहा कत्ल कर दीजिए, हमें तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है। तो ये होना चाहिए। हालांकि जहां तक है इंसान तो अपनी जेब के ताकत की बुनियाद से और जो जिस तरीके से वुसाअत हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको परेशानी में नहीं डालता है। शरीयत की जो चीजें हैं, अगर शरीयत की चीजों को आसानी अदा की जाती है, जो आपका जेब जिस बात पर इजाजत देता हो, उस जेब की इजाजत की बुनियाद पर कुर्बानी की जाए, मोटा फरबा किया जाए। अगर घर के अंदर आपका जानवर है तो उसको मोटा किया जाए, उसे पाला जाए, लाडो प्यार की तरह एक बच्चे की तरह पाला जाए। क्योंकि साहबी रसूल फरमाते हैं कुन्ना नुसम्मिमु बिल मदीनति कमा नुसम्मिनून अल मुस्लिमून, कि हम लोग कुर्बानी के जानवर को मदीना के अंदर मोटा ताजा किया करते थे। इसी तरीके से तमाम मुसलमानों जो मदीना के अंदर मुसलमान थे वो भी इसी तरह किया करते थे। साथियों, तो कुर्बानी का, ईद कुर्बानी का जो पैगाम था, उस पैगाम तमाम लोगों के वाज़ो नसीहत, तमाम लोगों की जो हमारे खुतबा थे, उनकी जो बातें थी, उम्मीद है कि वाज़ेह हो गई होंगी, और जो भी गलतियां हो रही होंगी, जो भी रिया, नुमूद, झगड़ा, लड़ाई, इसी तरीके से जो इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के इनेकाद हो जाने की वजह से इनके ऊपर काम किया जाएगा। आखिर में दुआ है कि बारिला हम सबको ईद कुर्बानी की जो फजीलत है उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।